So in this topic, life in desert, we have discussed in detail about the hot desert, and hot desert is Sahara, है ना? That in Sahara there is extreme temperature in daytime near 50 degrees Celsius, and at daytime the 0 degree temperature is there, है ना? So you can imagine that at present here in the morning the temperature was near about 10 degree, and now after the sunlight it has increased to 13 degree, 13-14 degree. Okay, so but in those extreme weather conditions, how the people has adapted themselves to live in those conditions. So now the next desert we are going to discuss, that is the cold desert. It means in hot desert, if the extreme hot was there, 50 degrees Celsius was there, so you can imagine that how it would be cold desert. Okay, so we will discuss about its climate, okay, its climate, its flora and fauna, then about its people, in brief about this cold desert. So before discussing about this desert, you will keep in your mind some of the images that I am going to share with you. So when you think of this cold desert, okay, so what comes to your mind? All these that all time, that all around the things, they are covered with snow, है ना? There is snow all around, and there is very much cold here. And but this is also some of the images of Ladakh region. You can see that there is transportation also, okay, and this is one of the Pangong Lake. It is also in this Ladakh region, and the picture 3 Idiot that is also being shooted here. And this doesn't mean that we don't find any type of vegetation here. We also find some type of vegetation, okay, that you can see. This is also another lake, and these are the people of Ladakh. Okay, so you will keep all these images in your mind, okay, when we are discussing about this Ladakh. So this is the map of Ladakh that we have discussed earlier also, okay, that in this Ladakh, it is now a union territory of India. And we will discuss about this cold desert Ladakh. And this cold desert, it is a part of India, है ना? ये तो हमें पता ही है कि it is also in Union Territory of India. Ladakh is one of the Union Territory of India, and it is also the part of India. And this is the cold desert. और ये भी हमने इंडिया के जब फिजिकल फीचर्स किए हैं, तो we have read or discussed in that there are Himalayas in all these north region. There are Himalayas, है ना? Himalayas mountains हैं. So it means this Ladakh region, it also comes in this Great Himalaya region, है ना? ये जो लद्दाख है, ये इस Great Himalayan region में ही आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे wait 1 minute. There is all mountain, this is mountainous region, है ना? तो ये सारा हमारा क्या है? ये सारा ही mountainous region है, ठीक है? और इसमें ये जो लद्दाख रीजन है, ये कहाँ पे है? ग्रेटर हिमालयास, जो हिमालयास की जो हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो सारी इसी रेंज में है, ठीक है? तो ये ग्रेटर हिमालयास हैं, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके डिफरेंट रेंजेस भी इधर हैं. माउंटेन रेंज हमने पढ़ा हुआ है ना? माउंटेन रेंज मींस
a series of mountains. तो सिर्फ एक माउंटेन नहीं है वहां पे, सीरीज ऑफ माउंटेन है. तो इस तरह यहाँ पे माउंटेन रेंज हमें कौन कौन सी मिलती है? ये हमें दो माउंटेन रेंज यहाँ पे मिलती है. ठीक है, एक तो हमें कराकोरम रेंज यहाँ पे मिलती है, एक हमें जस्कर रेंज. मतलब ये सारी क्या है यहाँ पे? माउंटेन रेंजेस. ठीक है, ये सारी माउंटेन रेंजेस हैं और इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज. तो इस माउंटेन रेंजेस के, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कराकोरम रेंज इट इज इन द नॉर्थ एंड जस्कर mountains they are in the south. ठीक है, so this Ladakh it is situated in greater Himalayas and there are several rivers you can also see. These are the blue lines, these are rivers which flow into this Ladakh region. So these are various rivers and one of the important river in this region, that is this Indus river. ठीक है, so this Indus river it is one of the important river that flow in this region. And these rivers and where these rivers flow, there are different valleys. Valleys means there is plain area between the mountains. ठीक है, so these are river valleys and there are also several glaciers are also found in this region. And the altitude of this region, altitude means the height, that is from the sea level height. So the height of this region, if we say height at this Kargil region, so here the height is about 3000 meter, and if we move to this Karakoram region, so here the height will be 8000 meter. ठीक है, 8000 meter in Karakoram mountain range and 3000 meter in Kargil area. So this is high altitude, very much high altitude is here. Altitude means height. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? काफी ज्यादा height है. So this altitude in Ladakh, it varies from 3000 meter to 8000 meter. तो अगर हम लद्दाख का यहाँ पे word to word देखें तो it is made up of two words. One is the La means mountain, and then second the Dras or Dak, it means country. ठीक है, so La means mountain, कि जो यहाँ पे माउंटेन का कंट्री है, माउंटेन पास कंट्री. ठीक है, और ये जो द्रास है इट इज वन ऑफ द एरिया ऑफ दिस लद्दाख रीजन. सो इट इज द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ. ये जो द्रास का एरिया है ये इस लद्दाख रीजन में हम कह सकते हैं कि कोल्डेस्ट प्लेस है. ठीक है, और यहाँ का अभी हमने बात की कि अल्टीट्यूड क्या है? वेरी हाई अल्टीट्यूड है ना. 3000 meter in Kargil and then 8000 meter in Karakoram. So it is very high altitude. So because of this high altitude, the climate is very extremely cold. और cold के साथ साथ क्या है? Dry. So the climate is extremely cold and dry. और यहाँ पे जो air अब dry है तो उसमें moisture नहीं होगा and the air is very thin here. और एयर कैसी है? बहुत ही थिन भी है. इतनी थिन है कि जो हीट है सन की वो इतनी, हमें ये नहीं कि हमें यहाँ पे सन हीट फील नहीं होती, बहुत कोल्ड है, हमें सन हीट भी बहुत ज्यादा फील होती है. इट कैन बी फेल्ड इंटेंसली. इतनी ज्यादा यहाँ की एयर थिन है दैट हीट ऑफ द सन वी कैन फील इट इंटेंसली. और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इन समर में डे टाइम टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री. डे टाइम की बात करें तो डे टाइम 0 डिग्री है, और अगर नाइट की बात करें तो एट द नाइट दिस टेम्परेचर मे गो बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में तो -40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो इट मीन्स कि हियर इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड and with the cold it is also dry, and due to this dryness the heat of the sun it can be felt intensely.
and the temperature in the night it may go down to -40 degree Celsius in winter for most of the time. ठीक है, और यहाँ का तो ये हो गया एक्सट्रीम क्लाइमेट. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट रेनफॉल, तो रेनफॉल जो है वो यहाँ पे बहुत कम होती है. ठीक है, एक लद्दाख का जो और नेम है दैट इज ऑल्सो एज खापाचन विच मीन्स स्नो लैंड, जिसको हम लैंड ऑफ स्नो भी कह देते हैं. ठीक है, तो ये जो हिमालय लद्दाख रीजन है इट कम्स अंडर द रेन शेडो ऑफ हिमालयास. ठीक है, रेन शेडो ऑफ हिमालयास कि हिमालयास इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन टू ब्रिंग रेनफॉल इन द नॉर्दर्न इंडिया, है ना. बट दिस एरिया ये जो है वो माउंटेन्स के बीच में आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो रेनफॉल नहीं पहुंच पाती है, पहले वाले एरियाज में ही हो जाती है. बिकॉज हमने देखा कि एक तरफ कराकोरम रेंज है, एक तरफ जस्कर रेंज है, तो इट इज इन बिटवीन द दीज माउंटेन्स, है ना. तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, जो सबसे पहला सदर्न वाली माउंटेन्स हैं इसके जस्कर रेंज से पहले, तो वहीं पे रेनफॉल हो जाती है और ये एरिया रेन शेडो एरिया बन जाता है. तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, बहुत लेस रेनफॉल होती है. इट मींस 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, बहुत कम रेनफॉल होती है. और यहाँ पे जो अगर विंड्स की बात करें तो विंड्स कैसी है, फ्रीजिंग, मतलब इतनी ठंडी हवा होती है कि यू कैन फ्रीज. और अगर सनलाइट है तो वो बर्निंग सनलाइट, मतलब वो सनलाइट भी आपको चुभेगी, है ना. तो दोनों ही चीजें आप एक साथ एक्सपीरियंस करते हो इस रीजन में. तो दिस एरिया experiences freezing winds and burning sunlight at the same time. यहाँ पे एक फैक्ट भी बताया गया that you will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, ठीक है, अगर आपने मतलब सन में बैठ गए हो, सिर्फ अपने पैर जो है वो अपने शेड में रख लिए हैं, तो क्या होगा, सनस्ट्रोक, अपर पार्ट पे सनस्ट्रोक हो जाएगा. और जो फीट आपने शेड में रखे हैं वहां पे फ्रोस्ट बाइट हो जाएगी, जिससे पूरी रेडिशनेस हो जाती है ठंड से. तो उस तरह फ्रॉस्ट बाइट आपके पैरों में हो जाएगी और ऊपर जो जहां पे आप धूप में बैठे थे वहां सनस्ट्रोक हो जाएगा. तो मतलब बोथ थिंग्स यू कैन एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम, फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट. The both the things you can imagine at the same time. So now discuss about the flora and fauna of this region. So जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे क्या है, vegetation is very sparse, है ना. vegetation जो है वो क्योंकि ड्राइनेस बहुत है, रेनफॉल बहुत कम है ना. ह्यू एरिडिटी मतलब बहुत ड्राई एरिया है, वेजिटेशन बहुत कम होती है इस ड्राइनेस की वजह से. तो जैसे हमने देखी थी कुछ इमेजेस, तो ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, तो होती है. यहाँ पे कुछ हमें ग्रासेस श्रब्स मिलते हैं और यही ग्रासेस या श्रब जो है वो एनिमल के लिए, कुछ उनके लिए दे कैन सर्व एज ए फूड फॉर दीज एनिमल्स टू ग्रेज. और साथ ही साथ हमें ट्रीज भी मिलते हैं, विलोज और पॉपुलर्स की ट्रीज. ठीक है, तो वो ट्रीज भी हमें मिलते हैं जो कि वैलीज का एरिया, जहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं उन वैलीज के रीजन में हमें ये विलोज और पॉपुलर के ट्रीज भी मिलते हैं. और समर्स के टाइम पीरियड की बात करें तो समर्स के टाइम पीरियड में लोग यहाँ पे जो फ्रूट ट्रीज हैं जैसे कि एप्पल, एप्रिकोट्स, वॉलनट, ठीक है, तो ये ट्रीज यहाँ पे होते हैं काफी. यहाँ पे ये वाले फ्रूट्स होते हैं. और कुछ जो बर्ड्स की स्पीशीज हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिबेटियन स्नोकॉक, रेवन, होप. ठीक है, तो ये कुछ कॉमन स्पीशीज हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं. और इनमें से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे होते हैं. और अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स लद्दाख में मिलते हैं हमें वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक, स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स आल्सो वी कैन फाइंड इन दिस रीजन. और ये जो एनिमल्स हैं, these animals also provide the people with milk, meat and hides. ठीक है, तो इन एनिमल से ही यहाँ के लोगों को मिल्क भी मिलता है, मीट और
हाइड्स भी मिलती हैं। और जो उनका मिल्क है, जैसे याक, उसका मिल्क यूज किया जाता है, याक्स मिल्क, दैट इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। और जो हेयर है उनका, हेयर ऑफ द शीप एंड गॉट, दैट इज यूज टू मेक वुलन्स। और इसी में एक और फैक्ट बताया गया है, दैट इज अबाउट द चीरू और तिबेटियन एंटीलोप, कि दिस इज एंडेंजर्ड स्पीशीज हियर, कि ये जो स्पीशीज है ना, ये यहाँ पे क्या है, एंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि इस स्पीशीज की काफी सारी हंटिंग होती रही है फॉर इट्स वूल, और उस वूल को जैसे शातूश कहा जाता था, क्योंकि वो वूल वेट में भी बहुत लाइट होती है और एक्सट्रीमली गर्म भी रखती है। तो इसलिए वहां पे ये जो तिबेटियन एंटीलोप है, इसकी हंटिंग की जाती थी इस वूल को लेने के लिए, और जिसकी वजह से ये जो तिबेटियन एंटीलोप है ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए यहाँ की फ्लोरा एंड फोना। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पीपल। एनी डाउट टिल नाउ बेटा? ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फैक्ट अबाउट दिस, कि जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स हैं, तो वो भी जो यहाँ पे हमें विलो ट्रीज मिलते हैं उसकी वुड से बनाए जाते हैं, जो मतलब जिस क्वालिटी को फाइनेस्ट माना जाता है क्रिकेट बैट्स जिससे बनते हैं, तो वो विलो ट्रीज की वुड से बनते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पीपल ऑफ दिस लैंड। तो यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, दिस इमेज इज ऑफ मोनेस्ट्री। ठीक है, सो विल यू टेल मी द मीनिंग ऑफ मोनेस्ट्री? हाँ जी, yes Bhavesh, will you tell the meaning of monastery? What is the meaning of the term monastery? हाँ जी, yes beta, the meaning of this term. हाँ जी आयुषी, the meaning of this term monastery? Ma'am, a place where monks live together. Yes, where Buddhist monks and nuns lives, है ना, तो उस प्लेस को उनके लिए रेस्ट हाउस बनाया जाता है, तो उसको मोनेस्ट्री कहा जाता है। तो इट इज वन ऑफ द मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री दैट इज फाउंड इन लद्दाख रीजन। तो इट मींस कि यहाँ पर बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, है ना। सो यू मे हैव फाइंड एनी रिजेम्बलेंस, मतलब आपको लगता होगा कि जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं या सेंट्रल एशिया में जो लोग हमें मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस लद्दाख के लोगों की तरह लगते हैं। ठीक है, तो देयर इज सम रिजेम्बलेंस बिटवीन दीज पीपल। और ये लोगों का हम कह सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं या तो मेनली वो मुस्लिम्स हैं या बुद्धिस्ट है। यहाँ पर जो ज्यादा हमें लोग मिलते हैं, कम्युनिटीज मिलती हैं, वो मुस्लिम और बुद्धिस्ट मिलती हैं। और यहाँ पे हमें बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी मिलती हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज जो हैं वो है हेमिस, थिक्से, शे, ठीक है, लमायरू, ये कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं जो हमें यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, और अगर यहाँ के लोगों की बात करें कि वो काम क्या करते हैं, तो यहाँ कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस में वो बिजी रहते हैं, तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि दीज पीपल दे आर बिजी इन कल्टिवेटिंग पार्ले, पटेटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। मीन्स कल्टीवेशन भी करते हैं, ठीक है, लेकिन सीजन, किस सीजन में? समर सीजन में। समर सीजन में अलग अलग कल्टीवेशन करते हैं। तो ये हो गई डिफरेंट क्रॉप्स जिनकी वो कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, और जो विंटर मंथ की बात करें तो विंटर मंथ में क्या होता है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श हो जाता है ना। समर में 0 डिग्री तो डे टाइम टेम्परेचर है, तो विंटर में तो और ज्यादा हार्श हो जाते हैं। सो पीपल हियर दे कीप देमसेल्व्स एंगेज इन वेरियस फेस्टिव्स एंड सेरेमनीज। तो अपने आप को वो बिजी रखते हैं अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स में, अलग अलग तरह की सेरेमनीज को परफॉर्म करने में। और यहाँ की जो वुमेन है दे आर ऑल्सो वेरी वर्किंग हार्ड। ठीक है, और ये नहीं कि वो सिर्फ घर में ही काम करती हैं, ठीक है, तो दे ऑल्सो वर्क इन फील्ड और मैनेज सम स्मॉल बिजनेस इन शॉप्स। ठीक है,
खेतों में भी काम करती हैं, घरों में भी काम करती हैं, और कुछ छोटे मोटे बिजनेस या शॉप्स वो भी हैंडल करती हैं. इट मीन्स बोथ मैन एंड वुमेन बोथ आर हार्ड वर्किंग हियर. ठीक है. सो अबाउट द पीपल दीज थिंग्स आर क्लियर, that mainly Buddhist and Muslims we find here, many Buddhist monasteries we find here. Summer seasons they are busy in cultivation, and in winter months they are busy in various festival ceremonies. And women, they are very much hardworking here. They not only stay in houses but work in field also, and they are doing some small business and managing the shops also. ठीक है. Any doubt till now beta? Yes बच्चे, any doubt till now? मतलब एनिमल स्किन. Yes, this word hides. Hide means skin हो गया, और क्या? एनिमल स्किन या सिंपल स्किन? नहीं, सिंपल स्किन नहीं, एनिमल स्किन की जो हम बात कर रहे हैं. ठीक है. The skin of animals that is used to make various woolens. Clear? So about the people, these points are clear. Okay. So next about more about. So here after these discussion of the summer season, winter season, and then the women hard work. ठीक है. Then about the capital of this Ladakh. So Leh is the capital of Ladakh. ठीक है. And that is well connected by road and air. मतलब here the road transport, air transport both are quite developed, and there is national highway also. And that national highway it connects the Leh to Kashmir Valley. ठीक है. Valley clear हो गया. The area between the mountain ranges. So आसपास में mountains and between the plain area from where the river is flowing. So that is valley. ठीक है. तो वहां पे जो यहाँ ये ले की वैली है और जो कश्मीर की वैली है, सो उन दोनों वैलीज को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये नेशनल हाईवे. और ये कहाँ से होके जाता है? फ्रॉम द जोजिला पास. ठीक है. जैसे अभी आपने यहाँ पे मैप में भी देखा था, इन द मैप. यस. सो हियर इट इज यहाँ पे. ठीक है. ये देखो ये जोजिला पास बना हुआ है. तो पास मीन्स कि यहाँ पे सारी क्या है? माउंटेन रेंज है ना. यहाँ पे माउंटेन रेंज है, और इस माउंटेन रेंज के इन बिटवीन जो रास्ता होता है, ठीक है, दैट आपने इमेजेस में भी देखा होगा. जैसे हमने यहाँ पे ये इमेजेस जब देखी थी, तो इन इमेजेस में यस लाइक दिस, तो इधर भी माउंटेन है ना, यहाँ पे भी माउंटेन है, यहाँ पे भी माउंटेन है. सो इन बिटवीन ये जो रास्ता है जो यहाँ से जा रहा है, तो दिस इज ये क्या है? पास. तो ये ले वैली को उस साइड जो कश्मीर वैली है वहां से कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को आपस में. ठीक है. तो क्योंकि ये पासवर्ड कई बार जिक्र आता है, तो अपने माइंड में रखना है कि व्हाट इज दिस पास. तो जो जोजिला पास है वो कनेक्ट कर रहा है ले को कश्मीर वैली से. ठीक है. और इसके बाद अब यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो टूरिज्म है वो भी एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि मेजर एक एक्टिविटी है, जहाँ पे और ऑक्यूपेशंस करते हैं लोग, कल्टीवेशन करते हैं, है ना. कल्टीवेशन के साथ साथ यहाँ पे लोग डिफरेंट सेरेमनीज उनको भी परफॉर्म करते हैं. और इसके बाद यहाँ पे अगर लोगों की टूरिज्म है, तो वो टूरिज्म एज ए गाइड वो भी लोग काम करते हैं, है ना. तो टूरिज्म भी यहाँ की एक बहुत मेजर एक्टिविटी है, बहुत टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं. और यहाँ पे जैसे इंडिया से भी आते हैं और अब्रॉड से भी आते हैं. और जैसे यहाँ पे विजिट टू गोम पास, ट्रेक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स, मतलब अलग अलग ग्लेशियर्स देखने जाना, या यहाँ पे जो लेक्स बनी हैं, जो यहाँ की इनकी सेरेमनीज, फेस्टिवल्स उनको देखना, या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज देखना. जैसे अभी हमने शूटिंग भी कई पिक्चर्स की यहाँ पे होती है ना.
तो बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो इस रीजन में विजिट करते रहते हैं। और यहाँ पे एक और डिफरेंट, जैसे पासेस हमने किया ना था जोजिला पास, तो यहाँ पे कुछ और पासेस के बारे में बताया गया है। जैसे मनाली ले हाईवे जो है, तो इसके बीच में 4 पासेस आते हैं, ठीक है। और ये जो हाईवे है ये सिर्फ जुलाई और सितंबर के इन बिटवीन ही खुलता है, बाकी टाइम ये बंद रहता है, ठीक है। जो मनाली और ले हाईवे है, एक ले टू कश्मीर हाईवे है, ये मनाली से ले का जो कश्मीर सॉरी हाईवे है, वो उसके इन बिटवीन 4 पासेस आते हैं, मतलब 4 जो पासेस आते हैं, तो उनको क्रॉस करना पड़ता है और स्नो को क्लियर करना पड़ता है रोड से। तो इसलिए ये सिर्फ जुलाई और सितंबर के इन बिटवीन ही ये वाला जो पास है ये खुलता है, ठीक है। और ये टूरिस्ट एक्टिविटीज हो गई यहाँ पे। और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ की जो लोगों की लाइफ है दैट इज ऑल्सो अंडरगोइंग वेरी चेंज, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, है ना। और इतने सालों में ये जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने इस नेचर के साथ रहना सीख लिया है। रिसोर्सेज चाहे उनके पास कम हो, वाटर कम हो, फ्यूल कम हो, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत केयर के साथ, बहुत हार्ड वर्क के साथ और नेचर के साथ उन्होंने रहना सीख लिया है। कुछ भी चीज को वो वेस्ट नहीं करते हैं, किसी भी चीज को वो हम कह सकते हैं कि यूजलेस नहीं छोड़ते हैं। सो एवरीथिंग इज रिगार्डेड ऑफ द नेचर एंड एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स टुमारो। एनी डाउट टिल नाउ बेटा? ठीक है, so we will continue the discussion of these question answers. Okay then, thank you beta.